Sharanam Sharanam Gachami. My name is Shraddha Sharma and I welcome you all to tonight's 7 p.m. P3Y class. Before we begin, we'll be welcoming Paramji by doing 10 Paramnads together. For those who know what Paramnad is, they can do it with me. For those who do not know what Paramnad is, they can see how it is done. And a little later in tonight's class, I'll tell in detail as to what the process is and what the body posture should be for this process to be done and what will be the benefits of doing this process of Paramnad. So let's begin. Mm. 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 With Paramji's blessings, I have had the opportunity of getting to know what P3Y is since my childhood, and I have been blessed in the manner that Paramji has granted me various types of desires that I have had over this long period since my childhood till date. When I was a child, I was new to the system of P3Y, and my parents were adults and they started doing P3Y. They got in touch with Paramji, and my ma was trained by Paramji himself. So, at the beginning, when I was a child and I was told to do P3Y to get my desires fulfilled, which at that time mostly was related to my studies. So, at the beginning, I was a non believer. I personally did not believe in the system of P3Y as to how can such a simple process work for somebody's benefit. That was the curiosity I had in me, and those were the kind of questions I had in me when I began doing P3Y. But as per mass training, as per mass teachings to me, when I started doing P3Y regularly in a proper manner, following all the guidelines that Ma has been telling us about, when I started doing those regularly, I myself were able to observe subtle changes which were like uh, I got detached from my friends who would actually not uh, like have a good influence over me. At that time, I was too naive to understand, or to such a small child to not to be able to understand what a bad influence is. But over time, when I was growing up, I actually started gathering the understanding of what things are, how things are happening. I understood that slowly, gradually, with Paramji's blessings, the bad influence around me has decreased. I asked for Paramji's blessings regularly. On a daily basis, I did Papra, which I'll tell you in detail what it is. So, when I did that Papra and when I spoke my desires and I sought Paramji's blessings, so
Gradually, my marks increased, my standing in my class increased, my understanding of concepts it developed, and I kind of became more confident. And from then on, while my progress was happening, I became a believer that this simple process of P3Y, this works for me. And if I follow the simple process, it is pretty sure, if the guidelines, if the rules, as for the lack of a better word, if the guidelines are followed properly, then the simple system will work for everybody else as well. With this, I'll begin by telling you now as to what P3Y is. P3Y stands for 3 P's and 1 Y. The first P is Paramji. If you look at the photograph, people might think that this is a photograph of some religious guru or Swami or Maharaj. But no, Paramji is no Guru Swami Maharaj. Paramji's spars cannot be seen with the naked eye, but the work, the outcome of those spars can be seen. As I mentioned at the beginning, my parents had the opportunity to get trained directly by Paramji. I unfortunately was a child at that time, so I did not get to be trained by Paramji himself, but I observed his teachings and whatever he conveyed to my parents. So it's till date, it feels as if Paramji is right now not staying with us in our home, but since he has blessed us and this house 1337 sector 19 Faridabad, so it feels that Paramji's blessings are working for us and all our desires are getting fulfilled. And it is his blessings by which all those people to whom I tell, Mama tells, or somebody else tells them about the system of P3Y. So, for those people as well, this simple process works, and everybody gets the benefit of getting their desires fulfilled. So, Paramji's blessings, Paramji's spars work for everybody equally. It totally depends on us as to when do we require those powers and how do we utilize those powers for our work. The more efficiently we utilize those powers, the better would be the outcome, the quicker would be the outcome. Now I'll move on to the second P of the system of P3Y, which is papr. Papr is a simple set of 11 sentences which have to be spoken in a specific order to get our desires fulfilled. Now, those sentences can be treated as Paramji's phone number. In order to be able to establish a connection with Paramji's powers, you need to dial that phone number correctly. I mean, you need to say these sentences correctly in the same order that I'm about to tell you. And once you do that properly, you will have established a virtual connection with Paramji. And then all you need to do is speak your desire and follow the process. That is it. And with that, Paramji will be granting you your desire. I'll begin by telling you what those 11 sentences are. I'll begin with the first 8. Those are Paramam Sharanam Gachami, Hansam Sharanam Gachami, Advaitam Sharanam Gachami, Anandam Sharanam Gachami, Sharanam Sharanam Gachami. हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ. Once you say these 8 sentences, then you do need to fold your hands in namaskar position, bow down and welcome Paramji. Once you do this, you will have established a virtual connection with Paramji. Now you come on to the ninth sentence in which you speak your desire, whatever the desire may be. The only constraint being the only guideline word that I used earlier, the guideline being
that any desire which will either not be fruitful for you in the present or future, or might cause harm to somebody else. Those kind of desires, even if spoken in P3Y, will not be fulfilled. Only the desire that will be beneficial for you, those kind of desires only will be fulfilled. I actually wanted to also share with you one of my very recent uh, desires that Paramji magically solved one of the very major problems that I was observing in my workplace. Paramji magically made it disappear. Uh, at my workplace, there was a development due to which one of my colleagues was not in my favor, and that colleague knew and was in direct touch with my reporting manager, which is why uh, the kind of work environment that I had around at my workplace was not very soothing, and it became annoying or toxic to the extent that there came a point when I had actually thought of even quitting without even having a secondary option, a job offer. The extent of the trouble that I was facing at my workplace was this big, enormous. And then I sat with Ma, I did Papara, and I told her all the problems. And in my when I was doing Papara, I sought Paramji's blessings that Paramji, I have been truthful in dispensing my official duties at my workplace. And since you know about it, and since you know that I have consciously or unconsciously not done anything due to which there is an environment of non cooperation around me, kindly help me so that I do not feel tensed, I do not feel compelled to resign or to move out of this workplace, move out of this environment, and I feel the inner strength so that I can gather my courage and go to the workplace again on a daily basis, work with those very same set of people who are creating a trouble for me. And by doing papr on a daily basis, I was able to navigate all the problems that came my way, either due to that colleague or due to that superior or due to any other thing. And it brings me great joy to tell you that today, when I was doing Papra, I had also asked that Paramji, by whatever means you feel is okay, if me continuing to stay in the current organization will be fruitful for me for my future growth, then please help me and bless the other person that the other person gets an opportunity someplace so that they can go and I continue to nourish and grow in my current setup. And it brings me great joy to tell you actually that Paramji helped me in this situation, wherein in spite of the problems that the other colleague created almost on a daily basis and the hostile environment that the colleague created, despite all of it, when I asked for Paramji's blessings and I asked for the betterment of my work environment with the other person getting an opportunity to go out, Paramji granted that. For me, continuing to stay in my current organization, if Paramji thinks it will be helpful and it will be good for my future growth, Paramji has now created that path for me, that I will continue to prosper in my current company, I will continue to grow, and so will my juniors. With Paramji's blessings, I'll seek his guidance and I will further lead their path. So I will grow, my juniors will grow, and the negative impact of having a non cooperative colleague will be out of the system. So this was a example, and
a real life desire that I had, and a problem that solved automatically with Paramji's blessings. So this was one of the examples that I wanted to share with you. So once you speak a desire in the ninth sentence, then you move on to the 10th and the 11th sentences. The 10th sentence is the one in which you commit to pay a form of fee to Paramji. It is, as soon as my desire is fulfilled in Pakar, I will pay 1 rupee to Paramji. And the 11th sentence is, as soon as my desire is fulfilled in Pakar, I will tell to one new person about the system of P3Y. So the 10th and the 11th sentences are two forms of commitments that we make to Paramji for every desire we speak. Now, when are we supposed to fulfill these commitments? These commitments are to be fulfilled when we feel that Paramji has granted us our desires. When I feel that what I had asked for from Paramji, Paramji has granted me that in entirety. So, in that case, I will go ahead and fulfill those commitments. To be able to remember what those commitments are for every desire we speak, what I also do and what you can also do is keep this with you. You can get in touch with Bhartima and get this. This is a diary where you can, there is a specific format given for every desire you speak. In this diary, you can note down every desire you speak so that you do not forget as to what were the commitments that you made for any particular desire. And once that desire is fulfilled, in whatever time it may be an hour, a week, a year, or 2 years, or whatever the duration may be, the bigger the desire, automatically the time taken would also be different. So, in order to be able to remember all of the commitments we make, we can use this book. So, with this, I have explained you about the first P, that is Paramji himself, the second P, that is Papra. Now I'll be stepping aside and Bhartima will be taking over and she'll tell you in detail about the third P and Y, which combine to form Param Yog. What Param Yog is, how to do it, and what are the benefits of it, that Bhartima will be telling you in more detail. Thank you. Charanam Sharanam Gachami. कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप को परम जी को अर्पण करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करेंगे परम जी का स्वागत 3 परमनाद के साथ। चलिए ठीक, उसके बाद फिर आगे और करते हैं। शरणम शरणम गच्छामि। अब इसके साथ ही में, जैसे कि अभी आपने श्रीदत्त शर्मा जी से सुना, P2 पप्र, इन परम प्रयोग के 11 वाक्य का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब पहला P परम जी, दूसरा P पप्र, तीसरा P और Y परम योग। परम योग जिसकी पूरी क्रिया
आप यदि इसको सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप जाइएगा P3Y वेलफेयर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको P3Y क्या है, P3Y परम योग पार्ट 1, परम योग पार्ट 2 दोनों वीडियोस शेयर की गई हैं, जिसके द्वारा आप बिल्कुल क्लियरली इनको सीख कर करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको खूब सुंदर लाभ होगा। तो चलिएगा, अब हम अभी आपने देखा हमने 3 परमनाद क्या किया, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें यदि सबके बीच में है, पब्लिक प्लेस है तो खुले रखना है खुले पब्लिक प्लेस पर हैं तो आंखें खुली रखनी है, और यदि हम एकांत में हैं, अकेले में हैं, तो हमें आंखें बंद रखनी है। खुले होंठ, सटे दांत, मुंह से सांस लेना है, सांस भर जाए होंठ बंद, नाक से सांस छोड़ना है, दोनों में बराबर है। लेकिन परम श्वास पब्लिक प्लेस पर है, आईज ओपन है, तो नाक से सांस छोड़ते समय नो साउंड, कोई आवाज नहीं, जैसे कि खुले होंठ, सटे दांत, मैंने मुंह से सांस लिया, सांस भर गया, होंठ बंद, नाक से बिना नाद के मैंने सांस छोड़ दिया, हाथ नीचे, इसे कहते हैं परम श्वास। 1, 3, 5 जितना आपका मन हो, लेकिन 10 से ज्यादा एक सिटिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा है परम नाद, सेम पोजीशन, बस आंखें बंद रखनी है, मुंह से सांस लेना है, नाक से एक हमिंग साउंड नाद करते हुए सांस छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए, सब सेम, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें बंद, खुले होंठ, सटे दांत, मुंह से सांस लिया, सांस भर गया, होंठ बंद, नाक से नाद करते हुए सांस छोड़ दिया। तो ये हमने किया परम नाद। तो परम श्वास और परम नाद ये हमने किए। अब आ जाता है जरूरत के अनुसार, यस। तो तीसरा पार्ट परम योग में परम ध्यान, जो हम प्रत्येक शनिवार हम सुबह 11 बजे की P3Y क्लास में सामूहिक यहीं से सीखते हैं, शक्ति लेते हैं, और फिर प्रत्येक दिन अपने घर में आवश्यकता के अनुसार प्रैक्टिस करते हैं, लाभ लेते हैं। परम योग, परम श्वास, परम नाद, परम ध्यान, इसके आगे भी और पार्ट्स, हाँ, तो हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन मेन बात आ जाता है, हमें जब तक हम काम करेंगे नहीं, तब तक हमें लाभ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो परम योग हमने एक बार किया, तो एक बार में सब कुछ नहीं मिलेगा, ना आएगा। हमने एक बार शुरू करना है। कितनी बार? दिन में, परम जी की वाणी के अनुसार दिन में 3 समय, रात्रि में सोते समय, सुबह उठते ही, जैसे ही आंख खुले, बिस्तर में बैठे बैठे ही, लेटे लेटे ही, और या फिर बैठ करके। तो सुबह उठते ही, तो रात्रि में सोते समय परम जी धन्यवाद, परमनाद किया, और उसके बाद परम जी धन्यवाद, आज का दिन सुखकारी रहा, कल का आने वाला दिन और अच्छा जाए, तो धन्यवाद करके सोना है। अब यदि मान लीजिए दिन में कुछ भी टेंशन स्ट्रेस रहा, तो टेंशन स्ट्रेस तो आ ही सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि हम मानव हैं, काम करेंगे तो समस्या आ सकती है, लेकिन हमारे पास समाधान भी तो है ना। तो हमने समाधान किया, यानी हमने पप्र किया, दिन मिला जुला रहा। तो रात में परमनाद किया, थैंक यू परम जी, आज का दिन मिला जुला रहा, कुछ कष्ट भी आया, लेकिन P3Y करके कष्ट खत्म भी जल्दी हुआ, उसके लिए धन्यवाद। अब रात अच्छी जाए और कल का आने वाला दिन भी अच्छा आए, ठीक है। तो शुरू तो यहीं से कर लें। दूसरा, सुबह उठते ही आंख खुली, और सबसे पहले, किससे पहले कि कोई और विचार जाए, हाय ये कैसे, वो नहीं, सुबह उठिए, उठते ही 3, 5 जितना आपको जरूरत है, मैक्सिमम 10 परम श्वास या परमनाद सुबह उठते ही कीजिएगा। उठते ही करने से क्या होता है? दिन परम जी को अर्पण, अपने आप को परम जी को अर्पण, तो दिन सुखकारी रहना ही है, दिनचर्या अच्छी जानी ही है।
तीसरी बार जब भी आप घर से बाहर निकलें, मान लो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ऑफिस जा रहे हैं, या अपने ऑफिस, अपने दुकान पर, शॉप पर, अपने फैक्ट्री में, कहीं भी आप जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहीं भी आप, तो घर से निकलने से पहले आप खड़े खड़े ही सही, आप परम जी का स्मरण कीजिए। और संभव हो तो हर एक जगह पर, ऐसे जगह पर जहां से सबका आना जाना होता ही है, तो परम जी का चित्र होना आवश्यक है। तो परम जी का छोटा सा ही सही, लेकिन चित्र लगा लीजिएगा। तो जाने से पहले परम जी का स्मरण कर रहे हैं, और खड़े खड़े ही आप परम नाद या परम श्वास जैसी आवश्यकता है, या जरूर वहां स्पेस है, परिस्थिति है, तो आप परम योग कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। तीसरी बार तो परम जी को साथ लेकर के जा रहे हैं। चौथी बार दिन के 12 बजे, यस, दिन के 12 बजे करके देखिएगा कैसे काम करने की शक्ति बढ़ती है। और शाम 7 बजे सामूहिक, दोनों समय मिलने पर जब हम सामूहिक परमनाद करते हैं, साथ में हम पप्र करते हैं, तो जैसे कि कृतिका जी ने आज सुबह बताया ही है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि परम जी के चरणों में, परम जी की वाणी में लक्ष्मी का वास है। परम जी की वाणी है, आप मेरा यानी इन पप्र के 11 वाक्य का प्रयोग करोगे, माँ लक्ष्मी अपने ही प्रसन्न होंगी। तो अनुभव का विषय है, करके देख लीजिएगा, अपने आप आएगा। तो शाम 7 बजे का परम योग और उसके साथ में यह पप्र करने से हमारा लाभ बढ़ता है। ठीक है, तो परम योग से कोई स्थूल चीज नहीं मिलती, अर्थात कोई भी लौकिक इच्छा पूर्ण नहीं होती, अलौकिक होती हैं, मानसिक शांति की, स्वास्थ्य की। लेकिन यदि कोई भी लौकिक चीज चाहिए, जैसे व्यापार, जैसे आज सुबह की 11 बजे की क्लास में किया ना, क्या पृथ्वी लक्ष्मी समृद्धि पाप्र किया ना, कृतिका जी के साथ पाप्र किया ना, कि परम जी आने वाला सप्ताह खूब लाभकारी रहे, आमदनी भी बढ़े, बरकत भी बढ़े। आपने अटेंड किया या नहीं? नहीं किया तो प्लीज एक बार फिर से सुबह 11 बजे की क्लास जरूर अटेंड करना। चलिए, आप में से जितनों ने किया है लिखिएगा, यस हमने क्लास अटेंड की है, और हमने P3Y साप्ताहिक लक्ष्मी समृद्धि पप्र किया है। तो सामूहिक पप्र करने से परम जी की अधिकतम शक्ति मिलती है, दो राय नहीं है। परम धाम में आकर के, यदि आकर के यहाँ या ऑनलाइन से हमें शक्ति मिलती है, बढ़ती है, इसमें भी दो राय नहीं। तो इसलिए जिन्होंने ये क्लास सुबह अटेंड की वो तो अनुभव ले ही लेंगे, जिन्होंने नहीं की आप क्लास अटेंड कीजिएगा, और अब भी मेरे साथ P3Y पप्र करके यानी लक्ष्मी समृद्धि कीजिएगा, या जिस भी इच्छा से आप आए अब वो कीजिएगा, तो पप्र करेंगे, हमें लाभ मिलेगा। तो ये हो गया आज के क्लास का लाभ। तो P2 पप्र के ये 11 वाक्य, तो परम योग करने से मानसिक शांति, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक विकास, सद्बुद्धि का बढ़ना, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का बढ़ना, किसी भी प्रकार का मानसिक रोग जैसे कि इंसोम्निया, सिजोफ्रेनिया, फोबिया, या किसी भी प्रकार का अन्य मानसिक कष्ट, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो ये सब तो दूर होता ही है। साथ ही में क्या बढ़ जाता है? मनोबल, क्या बढ़ जाता है? इम्यूनिटी। तो ये सब आपको लाभ मिलेगा। अब इसके साथ ही में यदि हम परम योग नियमित करते हैं, तो परम योग करने से हमें अपने दिन को और ज्यादा सुंदर बनाने की सद्बुद्धि भी मिलती है। तो परम योग से हमें मानसिक शांति मिल सकती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति मिल सकती है, लेकिन परम योग से किसी भी प्रकार का लौकिक यानी व्यापार में, परिवार में, या अन्य जीवन में, तो हमें कुछ भी काम बनवाना है, इच्छा पूर्ति करानी है, या संकट निवारण, तो फिर ये पप्र करना होगा। तो परम योग प्लस पप्र ये सफलता है, लेकिन नियमित करना है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे पप्र और लेंगे आज की क्लास का लाभ। ठीक, चलो तो शुरू करें। अब ध्यान रखना है, एवरी टाइम मैं बोलूं या नहीं बोलूं, ध्यान रखिएगा, जब तक हम परम जी से कनेक्ट नहीं होंगे, इस पावर हाउस से हमें शक्ति कैसे मिलेगी? तो इसलिए परम ध्यान में परम जी का ध्यान, परम योग में परम जी का ध्यान अवश्य करना है। ठीक है, चलिए तो 3 परम नाद।
चलिए, तो 8 वाक्य मेरे साथ ही शुरू करें। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। से झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज की इस P3Y क्लास में अपनी शक्ति दो। आज की यह क्लास अटेंड करने से आप जिन्होंने सुबह लक्ष्मी समृद्धि पत्र कर लिया है, उन्होंने कर लिया। जो रह गए वे बोलेंगे। बोलिए परम जी, आज से इस रविवार से आने वाले रविवार तक नियमित P3Y करने से मेरे व्यापार नौकरी में खूब आमदनी बढ़े, बरकत बढ़े, फिजूल खर्ची रुके, आमदनी ज्यादा, खर्चा कम हो, भाग्य दोष, परिस्थिति दोष के कारण हानि बीमारी ना आए। यदि आए भी तो P3Y से ही ठीक हो जाए। दवा खर्च, डॉक्टरी खर्च में कमी आए। आने वाला सप्ताह पिछले सप्ताह से सुखकारी रहे। मेरी आज की विशेष इच्छा है। अब जिसकी जो इच्छा है अपनी इच्छा मन ही मन बोल दीजिएगा। चाहे व्यापार चाहे विद्यार्थी हैं या रोगी हैं या अपना जो भी काम आप बनाना चाहते हैं, आप मन ही मन अपना काम परम जी को बोल दीजिएगा। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ति तक नियमित परम योग करने से मेरा मनोबल बढ़े, धैर्य बढ़े। सभी सावधानी रखते हुए कोरोना वायरस से, मानसिक शारीरिक रोगों से, दुर्घटनाओं से, विरोधियों से सुरक्षा बनी रहे। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अब मन ही मन रुपया आपको स्वयं निश्चित करना है। परम जी को दूंगी। 1 लीटर जल चढ़ाऊंगी, 1 पुष्प चढ़ाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊं। शरणम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में परम जी को अपना काम बोल दिया है। अब काम तो समय पर बनेगा ही, लेकिन तब तक क्या करना है? नियमित परम योग करना है। अच्छा अनुभव आते ही P3Y प्रचार करना है। तो पहला प्रचार, झट से जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को खत्म होते ही शेयर कर देना। तो पहला प्रचार शक्ति यहीं से मिलना शुरू। अब इसके बाद और आगे ये भी आवश्यक है, क्योंकि परम जी की वाणी है। आप सिर्फ सीखोगे, करोगे नहीं तो लाभ अधिकतम समय तक मिलेगा नहीं, क्योंकि P3Y बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। ये फॉर्मूला है, लेकिन प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो चलेगा। ये हो गया आज के क्लास का लाभ। अब अगला लाभ, पीने का जल भोज भेंट। तो लीजिएगा, आज की क्लास में रखा है स्वीट्स के साथ फ्रूट्स। यस, ये जरूरी है, दोनों का बैलेंस, और इसके साथ ही में भेंट भी। तो हाथ लगाएं या देखते रहें। शरणम शरणम गच्छामि। तो चलिए, इस जल में, पीने के जल में, भोज भेंट में परम जी ने शक्ति दी। इनका प्रयोग करने से, चलिए ये आपको लिखना है। क्या मैं सत्य बोल रही हूं कि
इस प्रकार से हम पीने का जल भोज भेंट परम जी को अर्पण करते हैं और उस अर्पण भोजन का प्रयोग करते हैं तो हमें मानसिक शारीरिक शांति और स्वास्थ्य बढ़ता है। यस और नो? बढ़ता है तो प्लीज स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि आपका यह स्वीकारना आपको प्रचार की शक्ति देगा, आपका अगला काम जल्द बनेगा। तो परम जी की वाणी है भाई, पैसे वाला वही बन सकता है जो मेहनत भी करे और सत्य को स्वीकारने में हेजिटेट भी ना करे, हिचकिचाए भी ना आए। यस, मेरा काम तो पितृवाय से बनता है, मेरा श्वास तो अर्पण विधि से बढ़ता है। तो जो भी स्वीकारेगा उसका काम और अधिकतम बनेगा। ठीक है? यस। तो चलिए अब अगला लाभ लेंगे हम किसके द्वारा? अगला लेंगे प्रार्थना के द्वारा। तो चलिए, जिन्होंने भी प्रार्थना, जो भी, तो पहला प्रार्थना मेरे परिवार की तरफ से परम जी के नाम से। अब बाकी की प्रार्थना आपने जो भी लिखी है, तो चलिए सब प्रार्थना आप और हम स्वयं से परम जी को अर्पण करेंगे। ठीक है? तो भोजन सामूहिक अर्पण करते हैं, अच्छा लगता है। तो आप कहेंगे फिर यहाँ लिखने का फायदा क्या है? अरे भाई, परम जी भी पढ़ते हैं और हम जैसे भी सब जो भी क्लास अटेंड आज कर रहे हैं या भविष्य में सब पढ़ते हैं कि आप सत्य को स्वीकारते हैं। अच्छा, इतने सारे लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब ऐसा अर्पण करके खाने से कुछ तो मिलता होगा, तो दूसरों को मार्गदर्शन मिल गया। तो इसलिए प्रार्थना लिखना और भोज में क्या अर्पण कर रहे हैं ये लिखना आवश्यक है। तो मन ही मन स्वीकारिएगा और बोलिएगा किसके नाम से आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाकी अर्पण मैं कर रही हूँ। ठीक है? तो स्मरण करें। शरणम शरणम गच्छामि। परम से निवेदन, जिन्होंने भी प्रार्थना की, जिस भी इच्छा से प्रार्थना की, सभी की इच्छा पूर्ण हो, संकट समस्या दूर हो, स्वास्थ्य बढ़े, समृद्धि बढ़े, सभी को परम जी का आशीर्वाद। शरणम शरणम गच्छामि। चलिए अब अगला लाभ क्या लेंगे? सुरक्षा जल, है ना? तो लीजिए सुरक्षा जल और देखते रहिएगा। तो अर्पण में यहाँ से सिद्धि यहाँ से जा रही, तो देखते रहेंगे छिड़कने का जल में। शरणम शरणम गच्छामि। तो इस जल में परम जी ने शक्ति दी छिड़कने की, स्प्रिंकल करने की। तो इस जल को छिड़कने से नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, नजर ग्रह दोष, वास्तु दोष जैसे दोषों का निवारण होता है। तो पहले लाभ आप लीजिएगा, आपको अच्छा अनुभव आए तो वही अच्छा सच्चा अनुभव आप अन्य लोगों को बताकर उन्हें भी P3Y क्लास अटेंड करने के लिए प्रेरित करते रहिएगा। तो बहुत सुंदर प्रचार की शक्ति मिलती है। तो अगला काम भी जल्दी बनता है, अनुभव का विषय है भाई, करके देखिएगा। ठीक है? तो चलिए अब क्लास के समापन में 3 परमनाद और परम जी का धन्यवाद, लेकिन साथ ही सूचना दे रही हूँ, कल सुबह 11 बजे सोमवार सप्ताह का पहला दिन परम जी को अर्पण करेंगे साप्ताहिक पत्र करके, और शाम 7 बजे है P3Y परम जी के साहित्यों से शक्ति से भरे साहित्यों की जानकारी, उनका महत्व, शाम 7 बजे। और उसके बाद रात्रि 9 बजे है गूगल मीट क्लास, जिसके अंदर आपको उड़िया भाषा में रश्मि बाला परिडा जी बहुत सुंदर तरीके से P3Y क्लास ले रही हैं उड़िया क्षेत्रीय भाषा। तो आप सबको अटेंड करना है और स्वयं अनुभव करना है कि किस प्रकार से दिन वही हम वही,
लेकिन जैसे जैसे P3Y कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, लोगों को अपना अनुभव बता रहे हैं, हमारे दिन और अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तीन परमनाथ परम जी का धन्यवाद। बोले थैंक यू परम जी, थैंक यू परम जी, थैंक यू परम जी। हे परम जी, अपनी ऐसी ही कृपा, अपना ऐसा ही आशीर्वाद भविष्य में भी मुझ पर, मेरे परिवार पर, हमारे काम पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी सद्बुद्धि पर बनाए रखना। चरणम शरणम गच्छामि। प्रेम से निवेदन, आज की रात्रि, कल का आने वाला दिन खूब सुखकारी रहे। चरणम शरणम।